Are you ready for exam? Tips for business study e-exam. Hello everyone, myself Sopan Joshi. Welcome to my YouTube channel SJ Commerce Classes. Today we will discuss tips for business study exam. So today we will discuss class 12th business study as per the new blueprint and format of question. Means current year के सिनेरियो में ये जो चेंजेस हुए हैं ब्लूप्रिंट में, जो भी ये चेंजेस हुए हैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में, जो चेंजेस हुए हैं सिलेबस में, कुछ पोर्शन डिलीट कर दिया है सीबीएसई ने, तो वो सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. So blueprint and format of the e-paper. Students must check the format and the recent changes as suggested by CBSE for the business study examination to be held in the year 2021. Here see the blueprint. Blueprint as per difficulty level of question. You know very well that mainly three types of question will be covered in the paper. Remembering and understanding question, applying question, and analyzing and evaluating and creativity question. Students, if you check the percentage and weightage of marks, then remembering and understanding question will become in the paper 44 mark. Means overall paper में उसका weightage कितना होगा 55%. Remembering and understanding, you know very well that exhibit memory of previously learned material by recalling fact, terms, basic concept and answers. Demonstrate understanding of facts and ideas by organizing, comparing, translating, interpreting, giving descriptions and stating main ideas. This will be covered 44 mark. 80 mark के पेपर में 44 mark का remembering और understanding level का होगा. Then applying knowledge means पेपर में 19 mark का जो होगा वो applying question होंगे. Means जिसका percentage है overall 23.75%. Solve problems to new solutions, new situation by applying acquired knowledge, fact, techniques and rules in a different way. And last, toughest section, analyzing, evaluating and creating. This portion will be covered 17 mark. यानी कि ओवरऑल पेपर में अगर इसका शेयर अगर चेक करो तो 21.25%. In this, examine and break information into parts by identifying motives or causes. Make inferences and find evidence to support generalizations. Present and defend opinion by making judgment about information, validity of ideas or quality of work based on a set of criteria. Creating means compile information together in a different way by combining elements in a new pattern or proposing alternative solution. Students, in this वीडियो वी विल ऑल्सो डिस्कस. ये वीडियो में हम और भी देखेंगे, क्या देखेंगे, डिलीटेड पोर्शन भी देखेंगे, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले टॉपिक भी देखेंगे कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं पर लेसन जो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, कौन कौन से लेसन है जो सीबीएसई ने इस बार डिलीट कर दी है. सी नाउ ब्लूप्रिंट एज पर वेटेज ऑफ चैप्टर्स. अगर चैप्टर का वेटेज पता हो तो उस हिसाब से आप प्रिपरेशन कर पाओगे. सो हियर वी हैव मेंशन एज पर न्यू paper style and new chapter wise weightage. This chapter number 1st, 2nd and 3rd 16 mark. Chapter number 4 and 5 14 mark. 6 7 20 6 7 8 20 mark. 9th and 10th 15 mark and 11th and 12th will be 15 mark. अगर 6 mark का क्वेश्चन अगर चेक करोगे तो सेकंड लेसन, फोर्थ लेसन, फिफ्थ लेसन एंड 11th लेसन, यानी कि 6 mark का क्वेश्चन यही 4 लेसन में से आएगा. मीन्स अच्छे से आपको उससे रिलेटेड प्रिपरेशन करनी है. ओके 5 मार्कर अगर चेक करने जाओगे देन दिस विल कम फ्रॉम लेसन नंबर 6 एंड लेसन नंबर 12th 1 क्वेश्चन एंड लेसन नंबर 7th एंड लेसन नंबर 9th 4 मार्कर क्वेश्चन 2 क्वेश्चन विल कम फ्रॉम लेसन नंबर 7th एंड लेसन नंबर 9th. ओके अंडरस्टैंड एंड लर्न. ओनली मगिंग अप और लर्निंग बाय हार्ट विदाउट अंडरस्टैंडिंग कैन नॉट हेल्प यू टू गेट मार्क्स. ऐसे ही सिर्फ if आप मगअप कर लेते हो और फिर एग्जाम में चले जाओगे, this will not help you. So you have to understand
through reading of books as one marker can be framed from any line of chapter. एनसीईआरटी को अच्छे से रट लो, दिमाग में बिठा दो सब कुछ, क्योंकि ये जो वन लाइनर जो है, वन मार्कर जो है, वो सारे कहाँ से होंगे, कहीं भी एनसीईआरटी की कोई भी टेक्स्ट बुक की कोई भी एक लाइन उठा के वो पूछ लेंगे. ओके. प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर्स, अंडरलाइन हेडिंग, अंडरलाइन कीवर्ड्स इन पेरा. जब कभी भी आंसर्स लिखते हो, आंसर्स को वो प्रेजेंट करते हो तो उस टाइम के ऊपर अंडरलाइन कर दो हेडिंग को. अंडरलाइन कीवर्ड्स इन पेरा, कोई पैराग्राफ में आंसर लिख रहे हो तो उसमें जो मेन वर्ड है, कीवर्ड है, उसको अंडरलाइन कर दो. इफ नंबर ऑफ पॉइंट्स आर नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन देन एज पर मार्क्स ऑफ क्वेश्चन. मींस अगर 3 मार्कर क्वेश्चन है, कोई 4 मार्कर क्वेश्चन है, वहां पे पॉइंट स्पेसिफाई नहीं किए कि उनको कितने पॉइंट्स में आंसर चाहिए, देन एज पर मार्क्स यू राइट द पॉइंट. 3 मार्कर है देन यू राइट 3 पॉइंट, 4 मार्कर है यू राइट 4 पॉइंट. Process to be written in sequence. Whenever they are asking the process, तो प्रोसेस हर बार सीक्वेंस में लिखो, स्टेज वाइज लिखो, स्टेप वाइज लिखो. ड्रॉ चार्ट और डायग्राम स्पेशली फॉर क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क एंड 6 मार्क. 4 मार्कर एंड 6 मार्कर क्वेश्चन जो होते हैं उसमें हो पाए तो डायग्राम ड्रॉ करो, चार्ट ड्रॉ करो, अच्छे से अच्छा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो. हाउ टू अटेम्प्ट case study. Already we have uploaded 2 videos related to case study, how to solve the case study. Now in this video we will also discuss, first you read from the last para. क्वेश्चन का जो लास्ट पोर्शन है उसको पहले रीड करो कि व्हाट इज आस्क्ड, पूछा क्या है क्वेश्चन में. राइट ऑल द पॉइंट्स ऑफ व्हाट इज आस्क्ड इन द केस स्टडी एज इंपोर्टेंस, फीचर्स, फंक्शन, कंसेप्ट. सारे पॉइंट्स लिख दो. अगर फंक्शंस पूछे, इंपोर्टेंस पूछा है, फीचर्स पूछा है, यू राइट एवरी पॉइंट. रीड केयरफुली, सिंगुलर और प्लूरल. फीचर पूछा है, कोई एक सिंगल फीचर लिखना है या फीचर्स लिखने हैं. ओके, यू हैव टू राइट फंक्शन और फंक्शंस, ये अच्छे से चेक करो, सिंगुलर एंड प्लूरल. हाउ quote the line from पेरा टू सपोर्ट योर आंसर. जब कभी भी आंसर लिख रहे हो तो पेरा में से एक कोटेड लाइन को वो मेंशन करो और एज पर दिस करके लिखो. यूज कीवर्ड टू आइडेंटिफाई द कंसेप्ट ऑफ इन अ केस स्टडी. पूरे पैराग्राफ में से कीवर्ड फाइंड आउट करो और उसके बेस के ऊपर आंसर अपना डिसाइड करो. रीड केयरफुली वर्ड्स लाइक स्टेट, आइडेंटिफाई, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन एंड अकॉर्डिंगली राइट द आंसर. केस स्टडी क्वेश्चन अच्छे से देखो. ओके, उसमें आंसर में क्या लिखना है. यू हैव टू ओनली मेंशन, यू हैव टू ओनली स्टेट, यू हैव टू ब्रीफली एक्सप्लेन, यू हैव टू एक्सप्लेन. ये सोच समझ के फिर आंसर अपना स्टार्ट करो. नाउ टाइम मैनेजमेंट. कई स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि भाई ये हमारा पेपर कंप्लीट ही नहीं होता है, लास्ट 20 मार्क्स का जो होता है उसमें 20 मिनट्स ही बची होती है, फिर 20 मिनट में जल्दी जल्दी में हमने लिख दिया. तो उस टाइम के ऊपर आपको वो मार्क्स भी उस हिसाब से ही मिलेंगे, क्योंकि ये जो हैवी वेटेज वाला था उसको आपने टाइम ही कम दिया है, तो वो आंसर भी तो आपने ऐसा ही लिखा होगा. सो हियर वी आर प्रेजेंटिंग द टाइम मैनेजमेंट इन पेपर, के आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करोगे एग्जाम में. इफेक्टिव यूज ऑफ 15 मार्क्स रीडिंग टाइम टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. स्टार्टिंग की जो 15 मिनट होती है उसमें पूरे पेपर को अच्छे से रीड कर लो और अपने दिमाग में बिठा लो कि कौन से क्वेश्चन में क्या क्या हो सकता है, कौन से क्वेश्चन में क्या क्या हो सकता है. स्पेंड डबल टाइम एज पर मार्क्स फॉर एवरी क्वेश्चन. हर एक क्वेश्चन के लिए डबल टाइम दो. ओके, जैसे 1 मार्कर है तो उसके लिए 2 मिनट दो, 2 मार्कर है तो 4 मिनट दो, 3 मार्कर है तो 6 मिनट दो. ओके, जैसे 20 क्वेश्चन 1 मार्कर है, सो वो कितना होगा, 40 मिनट्स यू यूटिलाइज. ओके, 3 मार्कर 4 क्वेश्चन है आपके पास, देन यू यूटिलाइज 24 मिनट्स. 4 मार्कर आपके पास 6 क्वेश्चन है, देन यू यूटिलाइज 48 मिनट. 6 मार्कर 4 क्वेश्चन है आपके पास, देन यू यूटिलाइज 48 मिनट. सबका टोटल करोगे तो 160 मिनट में आपका पूरा पेपर हो जाएगा. देन रिमेनिंग 20 मिनट से अगेन पेपर को रिवाइज करो. जहां जहां पे अंडरलाइन करने की जरूरत है, जहां पे कुछ आपको याद आ रहा है, रीडिंग करने के बाद कहीं पे फॉल्ट दिख रहा है, कट इट एंड राइट अगेन. सो टोटल टाइम विल बी 180 मिनट, यानी कि 20 मिनट आपके पास बचेगा पेपर को रिवाइज करने के लिए. एग्जाम में कैसी कंडीशन होती है कि ऐसे टाइम भागे जा रहा होता है, भागे जा रहा होता है और हम टाइम को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, so instead of
doing all the question in perfect serial order with lot of wastage of time and thinking about the answers that they find difficult. ये सीक्वेंस में जब आंसर लिखने बैठते हैं, फर्स्ट आंसर लिखा, सेकंड लिखा, थर्ड वाला याद नहीं आ रहा है तो हम क्या करते हैं, सोचते रहते हैं और फिर जब याद आता है तब उसको लिखते हैं. ऐसा मत करो. Okay, you leave the space. See, the students must write the answers they know well first, leaving the space for difficult one. Then they should write the answers to questions they find difficult. Okay, एक क्वेश्चन आंसर नंबर लिखते जाओ और लिखते जाओ आंसर्स. जो आंसर्स आपको याद नहीं आ रहे हैं, डिफिकल्ट है, तो उसको क्या करो, बाद में लिख लेना. ओके, आंसर नंबर लिख के स्पेस छोड़ दो और आगे चलो. सेल्फ स्टडी. In the month of Jan and Feb, focus only on self study. और कहीं पे दौड़ा भागी मत करो, सेल्फ स्टडी के ऊपर कंसंट्रेट करो. खुद अब देखो बुक को. While or during self study, read the chapter thoroughly line by line. क्योंकि आपको पता है कि 1 मार्कर जो है वो कैसे होंगे, एनसीईआरटी में से कोई भी लाइन उठा के पूछ लेंगे. ओके, लर्न दी हेडिंग अच्छे से लर्न कर लो. Try to attempt MCQ and case studies of that chapter without reading their answers. जो लेसन आपके होते जा रहे हैं उसके OTQ क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, केस स्टडी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और फिर उसके आंसर्स चेक करो. मार्क द डाउट एंड आस्क योर टीचर. जो डाउट हो रहे हैं, जैसे जैसे आप एनसीईआरटी रीड करते जाओगे कुछ डाउट होते जाएंगे. आस्क टू योर टीचर. आफ्टर फर्स्ट फेब प्रैक्टिस ओनली सैंपल पेपर. जैसे ही फेब स्टार्ट हो रहा है तो डेली एक पेपर लिखते जाओ. ओके, एटलीस्ट 1 पेपर डेली. नाउ वी विल डिस्कस टॉपिक that are deleted from the syllabus in that chapter number 3, demonetization concept. okay, जैसे ये ईयर में 2021 के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, सीबीएसई ने क्या किया है, कुछ टॉपिक्स डिलीट कर दिए. ओके, सो डिलीटेड पोर्शन में चैप्टर नंबर 3, demonetization concept. Impact of government policy changes on business with special reference to liberalization, privatization and globalization in India. ये तीनों टॉपिक कट हो गए, डिलीटेड हो गए. Then chapter number 4, single use and standing plan, objective, strategy, policy, procedure, method, rules, budget and program. In short, types of plan will be deleted, elements of plan will be deleted. Okay, from the chapter number 5, formal and informal organization concept will be deleted. Means difference वो सब कुछ उसका concept ही delete हो गया है. From chapter number 6, staffing as a part of human resource management. Okay, human resource management का HRM. Okay, this part also cancel and delete it. Chapter number 7, barriers of effective communication. हाउ टू ओवरकम द बैरियर्स. कम्युनिकेशन कट नहीं हुआ है, कम्युनिकेशन के 2 टॉपिक कट हुए. वन इज अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अनदर वन हाउ टू ओवरकम द बैरियर. दिस 2 टॉपिक विल बी डिलीटेड, नॉट फुल पोर्शन ऑफ कम्युनिकेशन. बी क्लियर. इन चैप्टर नंबर 8, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच की रिलेशनशिप जो है वो पोर्शन यहाँ पे डिलीटेड हुआ है. चैप्टर नंबर 11, physical distribution. In that components and channel of distribution. physical distribution topic पूरा कट नहीं हुआ है. physical distribution topic के अंदर component and channel of distribution will be deleted. And chapter number 12, consumer protection, importance, consumer awareness, role of consumer organization and NGO. This topic will be deleted. So now I think in your mind this is clear which topics and from which lesson this deleted. Now topics of confusion. कई टॉपिक बीएस में ऐसे हैं, हर लेसन में कोई ना कोई टॉपिक ऐसा है जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो उसको अच्छे से क्लियर आउट करो. इन चैप्टर नंबर 1, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. ये टॉपिक ऐसे हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं. चैप्टर नंबर 2, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड एंड कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. यहाँ पे 2 पर्सन के प्रिंसिपल्स दिए थे, हेनरी फ्योल एंड फ्रेडरिक टेलर. हेनरी फ्योल में यहाँ पे 2 दिए थे, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड एंड कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. चैप्टर नंबर 3,
डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्वेश्चन आता है, 101% इसमें से आता है डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये पक्का आएगा आएगा और आएगा, लिख के रखो बराबर। बट ये क्वेश्चन जो है तो डायमेंशन में बच्चों को दिक्कत होती है कि एग्जांपल दिया होता है उसके ऊपर से डायमेंशन डिसाइड करना होता है, तो ये कंफ्यूजन थोड़ा क्रिएट कर सकता है। सो बी क्लियर इन योर माइंड डायमेंशंस। चैप्टर नंबर 4 इंपोर्टेंस में एक पॉइंट दिया था प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, और लिमिटेशन में दिया था प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं चैप्टर नंबर 4 में कई बच्चों को। देन चैप्टर नंबर 5 डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, कई बच्चे 12th खत्म हो जाता है फिर भी नहीं समझ पाते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय डेलीगेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन। थीन लाइन दोनों के बीच में है, अच्छे से समझने की कोशिश करो। देन चैप्टर नंबर 6 अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम एंड वेस्टिब्यूल स्कूल। In chapter number 7, element of directing, types of communication, barriers to effective communication. This topic will be deleted. Barriers to effective communication. Okay. Chapter number 8, critical point control and management by exception. Critical point control भी क्वेश्चन आता रहता है और थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करे ऐसा है, आप अच्छे से चेक कर लेना। अगर आपको डाउट हो तो इससे रिलेटेड कोई वीडियो बना लेंगे, कंफ्यूजन रिलेटेड टॉपिक रिलेटेड। चैप्टर नंबर 9 ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 3 डिसीजन, कैपिटल बजटिंग एंड फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल। वैसे देखो तो इसमें कुछ नहीं है बट कई बच्चे फिर भी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सो दैट्स व्हाई वी हैव मेंशन टॉपिक ऑफ कंफ्यूजन इन दैट चैप्टर नंबर 10 टूल्स ऑफ मनी मार्केट, सेबीज फंक्शन। ओके, सेबी के फंक्शन आइडेंटिफाई करने में बच्चों को प्रॉब्लम होता है, जब कभी भी लिखने को बोले तो उस टाइम के ऊपर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसॉफी। ओके, एंड चैप्टर नंबर 12 राइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड राइट्स ऑफ एजुकेशन। मोस्टली बच्चे इसी में ये गलती करते हैं, जब कभी भी राइट्स पूछे जाते हैं तो उस टाइम के ऊपर ये राइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन और राइट्स ऑफ एजुकेशन उनको पता ही नहीं चलता है कि दिस टू आर डिफरेंट, नॉट अ सेम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्रेस द लाइक बटन, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर एंड मोर कॉमर्स related videos. To join CBSE class 12th WhatsApp group or to join Gujarat Board free classes of class 12th Gujarati medium and English medium, WhatsApp number is mentioned here. Okay, so send the message, we will enter in the group so you can touch with us. Thank you.